तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल, मैसूर एंड पंजाब। तो ये आपका हो गया बंगाल, दिस इज मैसूर एंड दिस इज पंजाब एरिया। Now Murshid Quli Khan in 1717 was appointed the Bengal Subedar, that is governor, by Mughal Emperor Farooq Siyar. तो कौन करते हैं? फारूक सियार करते हैं। The grant of governorship of Orissa also to him by Farooq Siyar in 1719. He transferred the capital of Bengal from Dhaka to Murshidabad. तो ये आपके कुली खान थे जो ढाका, बाकी जो बांग्लादेश में ढाका टू मुर्शिदाबाद करते हैं। नाउ सुजाउद्दीन जो है, ही वाज द सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुली खान। कौन है? दामाद है। ही वाज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ बिहार बाय मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला इन मोहम्मद शाह रंगीला इन 1733। नाउ सरफराज खान पे आते हैं। सरफराज खान जो, he was the son of Sujauddin and was murdered by Alwardi Khan, the deputy governor of Bihar in 1740. Alwardi Khan पे आते हैं। Legalized the usurpation by the receiving a farman from Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila after paying him rupees 2 crore at that time. He prevented the English and the French from fortifying their factories at Kolkata and Chandorgarh. From Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila after paying him rupees 2 crore, he prevented the English and French from fortifying their factories at Kolkata and Chandranagore respectively. Now Sirajuddaulah पे आते हैं। The Alwardi Khan was succeeded by his grandson Sirajuddaulah, और ये देखिए आपको 1756 और 57 में है, और ये डिसाइसिव टाइम है। Sirajuddaulah seized the English factory at Qasim Bazaar on 20 June 1756. Fort William surrendered, but Robert Clive recovered Calcutta. And on 2nd January 1757, Treaty of Alinagar was signed. तो कौन सा है? Alinagar was signed, where the Shiraz considered practically all demands. Now British didn't capture Chandranagore, the French settlement, on March 1757. अब यहाँ पे होता है, देखिए, बैटल ऑफ पलासी से पहले होता है आपका ट्रीटी ऑफ अलीनगर, and the battle of Palasi was fought on 23rd June 1757. Owing to the conspiracy, the Nawab was defeated. So the following betrayed the Nawab. कौन कौन करता है? मीर जाफर करते हैं, जो मीर बख्शी कमांडर चार, मानिक चंद ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कोलकाता। सो और कौन करते हैं? आमी चंद रिच सिख मर्चेंट एंड जगत सेठ द बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल एंड खादिम खान द कमांडेड अ लार्ज नंबर ऑफ नवाब ट्रूप्स। तो मीर जाफर पे आते हैं। तो मीर जाफर 1757-60 द कंपनी वाज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो ये कौन करता है? मीर जाफर करता है। इट रिसीव्ड द जमींदारी ऑफ 24 परगना। मीर जाफर हाउएवर fell into the arrears and was forced to abdicate in favor of his son-in-law मीर कासिम। अब इस कासिम पे आते हैं। तो कासिम जो है सीडेड बर्धमान, मिदनापुर एंड चित्तगोंग, he shifted his capital from मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। देखिए कैसे ढाका से मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो मुंगेर जो है ये बिहार में, मुर्शिदाबाद बंगाल में, ढाका बांग्लादेश अभी का प्रेजेंट। So Mir Qasim soon revolted as he was angry with the British for misusing dastak, that is pre-duty passes. However, having been defeated by British, he fled to Awadh, where he formed a confederacy with Awadh rulers Sujauddaulah and Mughal Emperor Shah Alam II. In the Battle of Buxar, 1764, the Mir Qasim, Sujauddaulah and Shah Alam II were defeated by Munro. Now Mir Jafar was again placed on the throne. Successor of Mir Qasim, Mir Jafar, Namazuddaulah and Saifuddaulah and Mubarakadaulah. So on Mir Jafar's death, his son Nizamuddaulah was placed on the throne and signed treaty 25th February 1765, by which the Nawab was to disband most of his army and administer Bengal through the deputy subedar nominated by the company. उतना काम करनी है। Now Clive concluded two separate treaties of Allahabad with Shah Alam II, जो कि 12 अगस्त को होता है, एंड सुजाउद्दौला जो कि 16 अगस्त 1765 को होता है। अब डुअल गवर्नमेंट पे आते हैं। 1765 to 1772 बंगाल स्टार्टेड 1765। द कंपनी एक्वायर्ड बोथ दीवानी एंड निजामत। तो निजामत क्या है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। दीवानी क्या है? टैक्स कलेक्शन है फ्रॉम निजामुद्दौला। तो किससे करता है ये चीज को देखिए, ये नहीं पता होता लोगों को। निजामुद्दौला, now the Nawab of Bengal, but the company did not take over direct administration and revenue collection. Warren Hastings entered the dual system of government in 1772, and this was asked in BP 1767. अब हम मैसूर पे आते हैं।
हैदर अली जो है 1761, ये देखिए आपका थर्ड बैटल पानीपत का टाइम है। विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, Hyder Ali began his career as a soldier in the service of Mysore state. Later, he became the Fauzdar of Dindigul. They established the modern arsenal in Dindigul with the help of French. Now, in 1761, the overthrow the Nanjarar, the powerful prime minister of Vodiyar king Krishna Raja I, and usurped the power through continuing to recognize Krishna Raja I as a lawful ruler. Now, first Anglo-Mysore war पे आते हैं तो 1663 में हो रहा है। हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। तो ये देखिए पहला में ब्रिटिश को हरा दिया जा रहा है। And Treaty of Madras was signed. The second Anglo-Mysore War जब होता है तो Warren Hastings attacked French Fort Mahe, which was in Hyder Ali territory. Now Hyder Ali later joined front with Nizam and Maratha. तो यहाँ देखिए ये जो आपके हैदर अली है, ये निज़ाम और प्लस मराठा के साथ मिलके इस पे अटैक करना चाहेंगे एंड कैप्चर आरकोट। ठीक है। सो इन 1781 द हैदर अली वाज डिफीटेड एट पोर्ट नोवो बाय द आयरकुट। ये आयरकुट जो है उनसे डिफीट हो जाएंगे। इन 1781 हैदर अली वाज डिफीटेड। कहाँ होते हैं? पोर्टो नोवो में होते हैं बाय एयरपोर्ट। ही डाइड ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वार। सो हम लोग आते हैं टीपू सुल्तान पे। हैदर अली वाज सक्सेसड बाय सन टीपू सुल्तान। कब होते हैं? 1782 में होते हैं। ही कंटिन्यू द सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1884 and the Treaty of Mangalore 1784 was signed with by Tipu Sultan, which ended the second Anglo-Mysore War. Third Anglo-Mysore War, Maratha and Nizam aided the British. अब देखिए ये जो मराठा और जो निजाम थे अब ये इस साइड आ जाएंगे थर्ड में। ठीक है। और यहाँ पे इनके अगेंस्ट में चला जाएगा पावर। सो थर्ड एंड कैप्चर्ड कॉर्नवालिस, कैप्चर्ड बैंगलोर बाय द ट्रीटी ऑफ श्रिंगनापट्टनम 1792। टीपू सीडेड हाफ ऑफ स्टेट, तो आधा टेरिटरी लेके चले गए यहाँ से। फोर्थ मैंग्लो-मैसूर जब होगा तो लॉर्ड वेलेस्ली अटैक्ड एंड टीपू सुल्तान डाइड। Tipu was the only Indian ruler who have understood the importance of economic strength as the foundation of military strength. ये आपका इकोनॉमी है, ये आपका मिलिट्री है। दिस मेक्स योर टेरिटरी वेरी पावरफुल। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं अभी का जो यूएसए है ये इतना पावरफुल क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्लस मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो और कितना आप नॉलेजेबल है सब कुछ काम नहीं करें, इकोनॉमिक अच्छा करिए और अपना मिलिट्री पावर अच्छा करिए। Now the Tipu was the only Indian ruler who had ठीक है। टीपू एस्टैब्लिश द एम्बेसीज टू फ्रांस, ये तो इंपॉर्टेंट है। फ्रांस हो गया, टर्की हो गया, ईरान हो गया, एंड पेगू टू डेवलप फॉरेन ट्रेड। और टीपू प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी एट हिज कैपिटल श्रिंगनापट्टनम एंड बिकेम द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। तो ये क्वेश्चन आता है बार बार। तो हम लोग पंजाब पे आते हैं। तो पंजाब गुरु गोविंद सिंह द 10th एंड लास्ट गुरु of the Sikh transformed the religious sect into military brotherhood. So in the confusion and disorder that followed the invasion of Nadir Shah and Ahmad Abdali, the Sikhs increased their military strength and became strong, powerful. अब क्या होते हैं? महाराजा रंजीत सिंह जो है he was the greatest Indian ruler of his time and founder of Sikh rule in the Punjab, born in 1780 at गुर्जनवाला। तो कहाँ पे इनका जन्म होता है? 1780 में गुर्जनवाला में होता है। He occupied Lahore in 1799 and made its capital. So he conquered Amritsar in 1802, occupied Ludhiana, and after the incessant wars, लगातार जो हो रहा है war, annexed कांगड़ा जो आपको ये आपको जम्मू कश्मीर के पास होता है, अटॉक हो गया, मुल्तान हो गया, कश्मीर हो गया, हजारा हो गया, बानू, देराजात, and Peshawar, and he finally died in 1839. और इसके बाद आपको एंग्लो जो पंजाब वॉर होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो सिख वॉर होता है। और सक्सेसर ऑफ रणजीत सिंह खड़क सिंह है, नौनिहाल सिंह है, शेर सिंह, दलीप सिंह है। So the Sikh power was broken by the British after the death of Ranjit Singh. और फर्स्ट जो एंग्लो सिख वार होता है वो आपको देखिए इनका जो डेथ होगा 1819 में होगा और यहाँ 1845 में ये लोग लड़ाई चालू कर दी है। तो सिख वर डिफीटेड इन ऑल 4 बैटल्स एट मुदुकी, फिरोज शाह, अलीवाल एंड सबराउं। सो द ट्रीटी ऑफ लाहौर जो 1846 में होता है एंडेड द वार एंड सर हेनरी लॉरेंस बिकम द फर्स्ट रेसिडेंट। कौन है फर्स्ट रेसिडेंट? हेनरी लॉरेंस एचएल। और सेकंड एंग्लो फिर सिख वॉर होगा आपको 48-49 के टाइम। देखिए रिपीटेड तुरंत हो रहा है। डलहौजी एनेक्स पंजाब एंड लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। तो पहले रेसिडेंट को ये लोग बना दिए कमिश्नर, जो अभी हम लोग चीफ जो कमिश्नर होते हैं वो हो गए। तो ये आपका हमारा ये है किंगडम एंड ईयर फाउंडेड। तो बंगाल का देखिए, बंगाल जो है मुर्शिद कुली खान करते हैं एंड एनेक्सेशन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू ये होता है। मराठा कॉन्फेडरेशरी है बाजीराव 1 1720 और 81 में इनका एनेक्सेशन कौन करता है? ब्रिटिश कर रहा है। यहाँ देखिए किसके द्वारा? सब्सिडरी अलायंस के थ्रू होता है।
निजाम ऑफ हैदराबाद, ये देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेट टू गेट इनटू सब्सिडियरी अलायंस कौन था? निजाम ऑफ हैदराबाद। नवाब ऑफ आर्कोट है, ये सदातुल्ला खान 1801 सब्सिडियरी अलायंस। नवाब ऑफ अवध और 1801 में इनका भी पतन हो रहा है डलहौजी के द्वारा। निजाम ऑफ हैदराबाद है, ये कौन है? चिंगलिज खान निजामुल मुल्क बोलते हैं। मैसूर में हैदर अली है। 1799 में जब टीपू मरते हैं तो आपको सब्सिडियरी अलायंस के साथ शामिल किया जाता है। पंजाब जो है वो राजा रंजीत सिंह के मरने के बाद 1849 में डलहौजी एनेक्स कर लेते हैं।